Hello everyone. Hope you all are doing fine. I am your new faculty for geography, and there was some technical glitch due to which there was some delay in your class. We are sorry for that. So let us start. The main topic for today is plate tectonics and related concepts. Generally, we hear about plate tectonics, but there are some related concepts also. So I have named it as plate tectonics and related topics. So let us start right away. First, basically the plate tectonics, as we will see as we move forward, it is not a straightforward theory. It is an improvement of many concepts which came earlier. First we will see those concepts, and then we will reach at the plate tectonics, which is the most advanced theory right now in the geography to understand the geomorphological processes. Okay, so first of all we start with the one second. The first main issue started with continental drift theory. The person who gave this theory was Alfred Wegener, German meteorologist, in 1912. In 1912, Alfred Wegener proposed that at some point of time, how he proposed we will also see, but he proposed that there was a supercontinent and he named it as Pangaea, and there was a world ocean. It means there was only one ocean in the world and there was only one continent in the world. Now pan means something very bigger or super in size in German language, and Gea means land. Again pan means super and thalassa means sea in the German language. So how he reached at this conclusion that all these continents were together and there was only a single supercontinent named Pangaea and only a single ocean named Panthalassa. See, if continent is single, then oceans would also be single. We all know very basic thing that how different continents and how different oceans are formed. There is Atlantic on this side, in between there is Americas, both Americas are there, and then there is Pacific. So who separates Atlantic from Pacific? It is continents. And who separates Europe and Asia from America? It is again an ocean. So ocean and continent both separate each other. So if the total landmass is at single place, obviously the whole ocean would be together. So how he proposed all these things? He made some points. And what were those points? He said that if I bring together the landmass of North America, South America with Africa and European landmass, they perfectly fit with each other. It is like if they were broken by some accident, otherwise how they can fit so perfectly. Okay, that was in short it is named as jigsaw fit of continents, that the pattern is not regular but still they fit very closely with each other. So first he went to the map and said that it seems that at some point of time these continents were together. Okay, then again then somebody might say that okay, it may be a coincidence. Why you are bringing South America to the Africa? Why don't take South America to the Europe and try to fit it? So then he gave some other evidences in favor of his theory. और वो था type and age of rocks. When he saw rocks in the Alps, in the Appalachian region, he found them of same age. One second. And same type of rocks. Now both similarities are not very common. The same age may be understood, but same type and same age both, it cannot be coincidence, which means they were formed together by the same material at the same point of time, and that can be possible only when these land masses were together with each other. Then somebody might say, okay, what are the other proofs? Then he went to the type of fossils. For example, now this map is half, there is Australia also here, and
there were fossils being studied at that point of time. So some fossils like Mesosaurus, those used to live in fresh water, a species of dinosaurs. These are found in South America also, Africa also, and Australia also, and sometimes in India also. So how is that possible that the fossils of same species are found at all the three continents which are thousands of miles apart right now? एक एक हजार मील से कहीं ज्यादा दूरी पे है बीच में. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स वो जो एनिमल था या वो जो प्लांट था वो यहाँ पे था उस टाइम पे, और ये सब एक साथ थे, तो वो इस पूरे लैंड मास पे था. ओके, दैट एनिमल और दैट स्पीसीज वेंट एक्सटिंक्ट, एंड आफ्टर दैट इट वेंट एक्सटिंक्ट, क्या हुआ? ये सब अलग अलग हो गए, तो फॉसिल्स तो इस पे भी रह गए, इस पे भी रह गए, और इस पे भी रह गए. ठीक है ना? सो अगेन दिस एविडेंस सपोर्टेड कि हाँ ये सब एक साथ थे किसी टाइम पे. Then he went for some other evidences also. He gave the example of some freshwater reptiles and plants. Plants की कुछ species है, वो आपको exactly जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि exactly what were the species, what are not the species. That is never asked. But what was the so similar kind of 1 second. Sorry. So similar kind of plants are found here. 1 second. Here and in Australia, and similar kind of animals also. I will give you a very famous example. In South America, if you have ever heard, there is a name of bird called rhea, and in Africa you have heard about ostrich, stormurg, and in Australia you have heard about emu, and there is a crossberry. Just check on the internet. If you see at all these birds, now they are different species, but if you see them closely for 1 second, you will clearly come to the conclusion. आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यार ये किसी एक के ही वंशज है सारे के सारे, because the size, none of them can fly. Okay, they evolved in different climates for long, so they have adapted a bit. But अगर आप देखो इनका basically size, none of them can fly. उनके पंख भी सभी के लगभग ऐसे ही हल्के हल्के. So all of them are basically what you call vegetarian. Okay, so none of them can make nest. So आपको आइडिया लगता है कि ये किसी एक ancestor से आए हैं. Now अब एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक एंसेस्टर मान लो किसी एक कॉन्टिनेंट पे था और वो यहां भी चला गया और यहां भी चला गया, बट दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उड़ के तो पार कर नहीं सकता है. द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन इट कैन नॉट फ्लाई, द पॉइंट इज इट माइट बी स्विमिंग. इसको तैरना भी नहीं आता है आज की डेट में, वो भी देखा जाए. और ये जो बर्ड्स हैं, emu, crossberry, ostrich and rhea, all these are living in freshwater environments. They cannot survive in marine kind of environment. So for thousands of miles it is impossible to travel them by accident also. So it means these land masses were together, their ancestor was common, and as the land masses separated, obviously Africa का climate different, there is a savanna kind of climate. There is again equatorial kind of climate in Brazil etc. in South America. In क्रॉसबेरी जहाँ पे मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में, तो उसका इवोल्यूशन थोड़ा अलग अलग टाइप का हुआ है. ईमो मिलता है मेनली न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया के ड्राई इलाकों में, तो वो थोड़ा अलग टाइप से इवोल्व हुआ है. बट बेसिकली अगर आप क्लोजली देखें तो रफली यू विल क्लियरली कम टू द कंक्लूजन कि इनका एंसेस्टर सेम था. तो कुछ चेंज आए हैं उनके अंदर जस्ट बिकॉज अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उनका इवोल्यूशन अलग अलग क्लाइमेट में हुआ है. तो इट मीन्स उनका एंसेस्टर सेम था. एंसेस्टर सेम था मतलब ये लैंडमास कभी सेम था. जब ये लैंडमास ब्रेकअप होना स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो कुछ इस साइड रह गए, कुछ इस साइड रह गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट पे रह गए, तो सभी का इवोल्यूशन अलग अलग हुआ एंड अल्टीमेटली अब वो फिलहाल अलग अलग स्पीसीज है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेसर डिपॉजिट्स. प्लेसर, व्हाट वी मीन बाय प्लेसर? प्लेसर वर्ड इज जो है मेनली इसका एसोसिएशन आपको आगे भी आएगा. इट इज एसोसिएटेड विद गोल्ड. गोल्ड दो तरीके से मिलता है. गोल्ड या तो मिलता है माइंस में,
डीप माइंस में, या फिर मिलता है गोल्ड ऑन द सरफेस इटसेल्फ। जैसे कि ये कोयला तुरंत थोड़ा सा खोद के निकाल लो, तो ये जो गोल्ड ये जो सरफेस में मिलता है इसको बोलते हैं प्लेसर गोल्ड या प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड जो हैं, एक अजीब बात देखने को सामने आई, आई थिंक आपने सभी ने थोड़ा सा सुना होगा, गोल्ड कोस्ट नाम की जगह है अफ्रीका में, यहां पे गोल्ड कोस्ट, ओके। और इसको गोल्ड कोस्ट इसीलिए कहा गया है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स जब यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स यहां पे आए तो उनको यहां पे काफी सारा प्लेसर गोल्ड मिला। प्लेसर गोल्ड मिलने को वी कैन से कि भाई यहाँ पे कुछ रहा होगा, तो उससे रिवर जहां से बह के आ रही है वहां पे कोई गोल्ड होगा अच्छा खासा। अब जब रिवर बह के आती है तो उसको पानी में बहा के ले आती है, और हमें यहाँ पे घाना के आसपास गोल्ड कोस्ट में पे इसीलिए इसका नाम पड़ गया। बट टिल नाउ नो सोर्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है कि जिससे प्रूव कि ये कह सके कि हाँ यहां से सोना बह के आ रहा है तो आपको ये मिल रहा है। तो तब ये सोना कहां से आया? ये जो सोना है ये साउथ अमेरिका में ब्राजील के अंदर इस पोर्शन में इसके सोर्स रीजन है, ठीक है। अमेजन में भी कुछ हद तक मिलता है अभी भी। तो बाद में ये पता चला कि कभी ये कॉन्टिनेंट एक साथ रहा होगा, तब इसमें से कुछ सोना यहां तक आ गया होगा। अब जब बिकॉज कॉन्टिनेंट ही अलग अलग हो गया तो नया ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा, तो इस क्या नाम है इस घाना के कोस्ट के आसपास आपको उसके प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इट मींस, और उस गोल्ड का जो कंपोजिशन है जिस टाइप से वो मिलता है, इट इज सिमिलर टू व्हाट इज फाउंड इन द ब्राजीलियन रीजन। तो इट मींस ही केम टू द कंक्लूजन कि ये प्लेसर डिपॉजिट अफ्रीका के कहीं से नहीं आया है, ये कभी अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ था। इस वाले रीजन में ऐसी रॉक्स हैं अबंडेंटली जो कि जिनके अंदर की प्लेसर गोल्ड मिलता है। तो कभी ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा जब कॉन्टिनेंट पहले एक था तब, तो यहां से यहां तक गया होगा। एंड दैट इज व्हाई वी फाउंड राइट नाउ गोल्ड ऑन द घाना कोस्ट। इसलिए कॉलोनियल्स ने इसको नाम दिया था, यूरोपियंस ने इसको नाम दिया था गोल्ड कोस्ट। सो दिस एविडेंस ऑफ प्लेसर डिपॉजिट ऑल्सो गोज इन फेवर ऑफ एल्फ्रेड वेजनर। ओके, नाउ देर आर सम, द लास्ट वन इज टिलाइट। देर इज ए वर्ड कॉल्ड टिल। व्हाट वी मीन बाय टिल? सी, a very common word you have heard is alluvial soil. What is alluvial soil? Alluvial soil हम सभी को पता है जनरली, जो रिवर जो सोयल बहा के लेके आती है, या जो फ्लोइंग वाटर में जो सोयल के पार्टिकल बह के आते हैं और वो जब जमा होते हैं उनसे जो बनता है उस सोयल का alluvial soil बोलते हैं। ऐसे ही आप अभी के लिए इतना आइडिया लगा सकते हैं कि जब ग्लेशियर भी डाउन द स्लोप नीचे की साइड मूव करते हुए आता है तो माउंटेन से या उस एरिया से कुछ ना कुछ तो अपने साथ इरोड करके लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो रब करेगा। तो वो जो ग्लेशियर के जो डिपॉजिट्स होते हैं सोयल के, ग्लेशियर जो डिपॉजिट सोयल अपने साथ एब्रेसिव एक्शन से, एब्रेसिव मतलब केमिकल एक्शन अलग होता है, एब्रेसिव मतलब इसको फिजिकली मान लो मैं इस बोर्ड को लगाकर घिसता रहूं तो घिस जाएगा, मतलब लाइक इन मिलियंस ऑफ टाइम्स। सो इसके जो पार्टिकल्स बनेंगे मेरे हाथ से घिसने से, उनको मैं कहीं ले जाकर छोड़ूंगा, नीचे गिर रहे होंगे। सो दोज आर नोन एज टिल इन केस ऑफ ग्लेशियर। सो ग्लेशियर जो सोयल अपने एब्रेसिव एक्शन से अपने साथ खींच के लेके आता है या बहा के लेके आता है, और जहां पे ग्लेशियर टर्मिनेट होता है एट लास्ट, जैसे हिमालय वाले ग्लेशियर अगर आप देखें तो ऐसा थोड़ी है कि वो या हमारे हरियाणा तक या दिल्ली तक चले आए, जहां पे उनका टेम्परेचर 0 से ऊपर हुआ वहीं पे उससे आगे फिर पानी बहता है। तो वहां पे ग्लेशियर ने क्या किया, अपना डिपॉजिट्स छोड़ दिया, एंड दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज टिल। आगे डिटेल में चैप्टर में आएगा बहुत अच्छे से, व्हाट इज टिल, व्हाट इज टिल प्लेन, तो व्हाट इज मेल्ट आउट प्लेन। सो अभी क्या पाया गया कि भाई साहब इस रीजन में और इधर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर भी कुछ टिलाइट मतलब कि टिल डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब टिल डिपॉजिट्स मिलते हैं और वो टिल डिपॉजिट्स जो हैं लगभग सेम टाइम के हैं, लगभग सेम टाइप के हैं। इट मींस अब ये कहा गया कि भाई साहब क्या पता कभी आइस एज आई होगी तो ऐसा हो गया होगा, आप क्यों ना परेशान हो रहे हो।
तो बोला कि अगर आइस एज भी आई होगी तो ये तो लगभग ट्रॉपिकल रीजन है, तो इनके ऊपर तो आइस एज नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बर्फ गिर जाए, इतनी बर्फ तो नहीं गिर सकती कि इतना अबंडेंटली आपको टिल मिला जो कि आज तक अवेलेबल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इट मींस ये कॉन्टिनेंट कभी एक साथ थे, और एक साथ थे तब ये साउथ पोल के पास थे जो कि परमानेंटली कवर्ड रहता है अभी भी स्नो में। ओके, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्लेशियर्स वर क्वाइट एक्टिव, और उन्होंने यहां पे अपनी टिल डिपॉजिट की थी इन दीज रीजन्स। ओके, सो बाय ऑल दीज एविडेंसेस or by all these arguments, jigs of it of continents, type and age of rocks, same fossils, same type of freshwater reptiles and plants right now, ठीक है, और placer deposits and tillite, एल्फ्रेड वेजनर वाज क्लियरली एबल टू, वो अपना अच्छे से पॉइंट प्रूव कर दिया था कि हाँ ये कभी ना कभी तो साथ थे, ये कभी ना कभी तो साथ थे। इट वाज क्लियरली प्रूवन। ओके, सो नाउ केम द नेक्स्ट, एक बार एक डायग्राम है वो देख लेते हैं, 1 सेकेंड। नाउ दिस इज द डायग्राम। इसके अलावा एल्फ्रेड वेजनर को एक बात और अजीब पता चली थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो आगे भी आएगी। एल्फ्रेड वेजनर ने जब भी ओशियन की रॉक का थोड़ा बहुत कहीं से भी सैंपल लिया, इस किनारे से और इस, सॉरी इस 1 सेकेंड, इस किनारे से और इस किनारे से, उसको 300 मिलियन ईयर से पुराना कोई सैंपल ही नहीं मिला। सैंपल्स वर एज ओल्ड एज 300 मिलियन ईयर्स और अर्लियर, जबकि कॉन्टिनेंट्स के जो सैंपल थे वो क्वाइट ओल्ड थे। तो इसलिए एल्फ्रेड वेजनर ने कहा कि जो ओशियन वाला क्रस्ट है ये न्यूअर है और कॉन्टिनेंट वाला जो क्रस्ट है वो ओल्ड है। दैट मींस ये ओशियन का क्रस्ट न्यूअर है देन द कॉन्टिनेंट्स, दैट मींस कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर एंड दिस न्यू क्रस्ट इज बीइंग फॉर्म्ड एट द और दिस ओशियन इज द न्यू थिंग दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। कॉन्टिनेंट्स तो पहले से हैं, ओशियन नया बना है। अभी बना कैसे है? इट मींस वो रिप अपार्ट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अभी आते हैं, एक डायग्राम है अपने पास, 1 सेकेंड। दिस इज द डायग्राम आई हैव टेकन। मैंने एक डायग्राम कहीं से निकाला है ताकि आपको थोड़ा एक बेसिकली आइडिया हो जाए। उसने यहां तक का प्रपोज किया था, जो अभी आप आगे जाएंगे तो इसीलिए मैंने कहा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, अभी आप आगे जाएंगे तो आपको और बहुत कुछ पता चलेगा। ये जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से कभी एक हो गए, फिर अलग अलग हो गए, फिर मूव कर रहे हैं, फिर अलग अलग हो गए, ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा है। ठीक है, लाइक साइंटिस्ट राइट नाउ अज्यूम और जियोफिजिसिस्ट जो है वो राइट नाउ अज्यूम करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो एक रोडिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था, बट उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं बिकॉज वो तो बहुत ही हाइपोथेटिकल है। ठीक है ना, बट यहाँ पे 300 मिलियन ईयर्स अगो ये सारा जहां से उसने प्रपोज करना शुरू किया एल्फ्रेड वेजनर ने, और जो साइकिल अभी चल रहा है इस साइकिल को बोलते हैं विल्सन साइकिल। उसको अगर लास्ट में बताऊंगा आपको तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये था, ठीक है, ये जो नॉर्थ वाला लैंड मास मेनली जो अलग हुआ था, इट वाज नेम्ड एज लोरेंसिया। ओके, इट कंसिस्टेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एंड चाइना वाला जो था, यूरेशिया मतलब यूरोपीय आ लिया और आपका एशिया भी आ लिया, दे मूव टुगेदर। और जो साउथ वाला बचा था जो कि थोड़ा लेट था चलने में, उसको बोला गया, क्या बोला गया? इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहां मैं लिखा गोंडवाना लैंड। इसके अंदर साउथ अमेरिका था आपका, देखिएगा, अफ्रीका था, इंडिया थोड़ा ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया साइड में चला गया, अंटार्कटिका स्टिल नीचे ही है। ओके, सो दीज वर द टू मेन कॉन्टिनेंट्स। पैंथालसा ब्रेकअप हुआ लोरेंसिया में और गोंडवाना लैंड में। लोरेंसिया से फर्दर ब्रेकअप होके बना आपका यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका मेनली, और आपका गोंडवाना लैंड से बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड इवन अंटार्कटिका इज स्टिल देयर साउथ में। ओके, सो ये भी मूव कर रहा है। उसके बाद आगे कैसा बनेगा वो भी देखेंगे, आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के लास्ट में समझ में आ जाएगा कि आगे कॉन्टिनेंट अब आगे कहां जाएंगे। राइट नाउ तो ऐसा है प्रेजेंट डे, तो ये आप देख सकते हैं मैप इसका कुछ कुछ मैच करता होगा आपके उससे, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये मैप आप देख लीजिए आपके
प्रेजेंट मैप से एकदम मैच करता होगा। अफ्रीका यहीं पे है, साउथ अमेरिका यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, सो यहाँ पे अब क्या हुआ, अल्फ्रेड वेजनर से अब ये पूछा गया कि ठीक है आपने इतनी बकैती कर दी कि ये अलग अलग थे, ये एक हो गई, अब तो हर कोई मानता है, बट 1912 में कोई मानने में एग्री नहीं था कि ऐसे हो गया होगा, जमीन खिसक गई। तो अभी भी कहते हैं ना कि जमीन थोड़ी हिल जाएगी, तो वो था कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उससे कहा गया कि भाई साहब आपने इतना राम कहानी बता दी कि इकट्ठे थे, अलग अलग हो गए, इनका कुछ भी हो गया, झगड़ा हो गया, अब ये तो बताओ कि अलग अलग हो क्यों गए और ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो इसने क्या कहा कि भाई साहब ये शुरू में सारा लैंडमास कहां पे था, साउथ कॉन्टिनेंट के, साउथ कॉन्टिनेंट या पेंजिया बोलो, मतलब साउथ पोल के पास था शुरुआत में सारा। ओके, तो इसने दो फोर्सेस का जिक्र किया, मेजर फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। पहले फोर्स को उसने नाम दिया पोलर फ्लीइंग फोर्स। ओके, व्हाट इज पोलर फ्लीइंग फोर्स? जब भी कोई चीज अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके ऊपर। अब जब वो कोई पॉइंट जो पोल के पास है, वो तो एकदम एक्सिस के पास ही है ना, भाई पोल क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल जिनके राउंड अर्थ घूमती है। अब कोई चीज जो इसे दूर जाना चाहे, अब आप कहीं से दूर जाए तो एक बार में अलग क्यों नहीं हो जाती? अलग नहीं हो सकती फॉर द रीजन बीइंग ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, उसको एकदम अलग तो नहीं होने देगी, पर वो हल्की हल्की स्लाइड करती है, हल्की हल्की से दूर जाती है जो जाना चाहती है। आप देखो ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कोई लैंड मास है तो बिल्कुल नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अब वो दूर जाना चाहता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसके एक्सिस पे घूमने के कारण लगता है। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन करने के कारण क्या लगता है, जो भी चीज यहाँ पे है, यानी कि कोई से भी पोल पे हो, उस टाइम साउथ पे थी तो साउथ पोल पे नॉर्थ पे से दूर जाना चाहेगी। अब पोल से मैक्सिमम दूरी पे कौन सी लाइन है? इट इज इक्वेटर। तो अल्फ्रेड वेजनर ने कह दिया कि भाई साहब ये पोल फ्लीइंग फोर्स है या पोलर फ्लीइंग फोर्स है, जिसके कारण ये पूरा लैंडमास कॉन्टिनेंट पोल के इलाके को छोड़ के अर्थ से यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम दूरी पे होना चाहता था, एंड दैट इज अराउंड इक्वेटर। ओके, एक ज्ञान उसने दे दिया। दूसरा ज्ञान उसने क्या दिया, फिर उससे ये पूछा गया कि भाई ठीक है, तो फिर तो मैक्सिमम लैंडमास राइट नाउ कहां पे मिलना चाहिए? इक्वेटर पे मिलना चाहिए ना। क्या इक्वेटर पे इतना लैंडमास है? आप देखिए इधर मैंने रफ सी इक्वेटर बनाई है, पर नहीं है। अरे यूरोप और एशिया कितना बड़ा इससे ऊपर रह गया, अफ्रीका भी काफी बड़ा इससे ऊपर रह गया, इंडिया रह लिया, नॉर्थ अमेरिका पूरा रह लिया, साउथ भी आधा, अमेरिका भी आधा ही है। तो ये लैंडमास तो फिर सारा कंसंट्रेट होना चाहिए था अराउंड द इक्वेटर, जो कि नहीं है। दैट मीन्स कुछ और भी है, इससे तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसने सेकेंड फोर्स का फिर नाम लिया टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। हम देखते हैं कि सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी काम करती है सन की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी काम करती है ऑन द अर्थ। कब देखते हैं? जब हमारे यहाँ पे टाइड्स आते हैं ओशियंस में, दिन में 2 बार आते हैं ना। तो उसने कहा कि पानी तो में जब टाइड आते हैं, इससे प्रूव होता है कि ग्रेविटी लगती है, तो वो ग्रेविटी क्या इस सॉलिड लैंड मासेस के ऊपर नहीं लगती होगी? इनमें क्या मास नहीं है? बोला हाँ बिल्कुल लगती होगी। तो लगती होगी तो फिर ये भी मूव करते हैं और इसीलिए मूव कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, पर आपने ज्ञान दे दिया कि टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, पर भाई साहब आप एक बात बताइए, एक बार टाइड इधर का आता है, फिर टाइड पीछे हट के इधर साइड आता है, तो टाइड तो बैलेंस करता रहता है ना, बिकॉज अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो पानी एक बार इधर चढ़ेगा, फिर एक बार इधर चढ़ेगा, फिर एक बार इधर चढ़ेगा। तो ये उसमें तो ऑक्सिलेटरी काइंड ऑफ मोशन है ना, एक पॉइंट के राउंड, एक बार इधर गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। उसकी मीन पोजीशन तो सेम है ना। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? आप कह रहे हो भाई साहब कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका अफ्रीका से दूर दूर भाग रहे हैं। ये कौन सा टाइडल फोर्स है कि एक ही साइड लेके भाग रहा है इनको? ये तो हमें भी समझ में नहीं आता ना अभी भी। तो अल्फ्रेड वेजनर ने ट्राई किया बेचारे ने खूब एक्सप्लेन करने का, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ दीज फोर्सेस। उसने दिए थे दोनों, बट द थ्योरी वाज नॉट प्रूवन कि इसी के कारण ऐसा होता है। तो ये सबने मान लिया बिकॉज ऑफ ऑल द एविडेंसेस जो उसने दिए थे कि भाई साहब एक सेकेंड
हाँ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर सभी ने मान लिया कि ये प्रूव करते हैं कि साथ थे, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मूवमेंट कि साथ क्यों थे, ये तो बताओ। सॉरी, ये अलग अलग किस कारण से हो गया और अभी भी क्यों मूव कर रहे हो तो बता दो। तो वो ये जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल वाला सेक्शन है उसने दो फोर्सेस बताए, बट ये लॉजिकल अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। तो वो ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ये अपना पॉइंट एग्जैक्टली प्रूव कर दिया था कि कॉन्टिनेंट्स कभी साथ थे, कॉन्टिनेंट्स दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके फाइन, पर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसने ये तो सभी के दिमाग में बिठा दिया कि भाई ये था और अभी ऐसा हो रहा है, बट व्हाट इज द रीजन, वो रीजन में फेल हो गया बेचारा इसको एक्सप्लेन करने में। बाकी उसने जो, इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं इट इज ए डेस्क्रिप्टिव थ्योरी। व्हाट वी मीन बाय डेस्क्रिप्टिव? डेस्क्रिप्टिव मीन समथिंग जो कि किसी चीज का केवल डिस्क्रिप्शन दे, या हिंदी में उसको बोलते हैं उसका केवल विवरण दे। तो इसने ये तो बता दिया कि ये था और ऐसा ऐसा हो रहा है, बस इतना ही बता पाया। क्यों हो रहा है, जो वाई वाला एस्पेक्ट था या हाउ वाला एस्पेक्ट था वो नहीं बता पाया। तो इसके बिना थ्योरी कैसे रहेगी? कहते ना राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग लाइक, मतलब कुछ इवेंट दे देगा आपको पेपर में, तो डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ हुआ है वो बताना है बस आपको, क्यों हुआ उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया वो, ठीक है ना। सो इट इज ए डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है या आगे कैसे होगा। सो दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आई थिंक प्लेट टेक्टोनिक्स शुड बी क्लियर। तो अभी आगे देखते हैं एक बार कि इससे आगे क्या इंप्रूवमेंट आए इसके बाद। 1 सेकेंड। ओके, सो अप टू ड्रिफ्ट इट इज क्लियर। ड्रिफ्ट के बाद कुछ पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आई। कुछ लोग आए कि अब हर किसी को होती है कि भाई इसने जब ये प्रूव कर दिया और हर किसी ने मान लिया, और मान भी के लॉजिकल था तो मानना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट तो हुए हैं, हो रहे हैं ड्रिफ्ट तो, पर इसको प्रूव कैसे करें कि क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों मूव कर रहे हैं। सो इसके लिए जो अगेन एक नाम निकल के आया वो था आर्थर होम्स। नेम इज नॉट रिक्वायर्ड, नाम रखने के मैंने बता दिया है, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसने थ्योरी दी थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इस थ्योरी को बहुत ही सिंपल अगर वर्ड में समझाऊं मैं आपको, तो सिंपली बेसिकली इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। उसने कहा कि इनर और आउटर कोर को छोड़ दो आप, हमारा ये जो क्रस्ट है, वैसे तो क्रस्ट और लिथोस्फीयर अलग अलग होता है, पर क्रस्ट या अभी के लिए सेम मान लेते हैं, या लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड है, ये लिक्विड मेंटल के ऊपर तैर रहा होता है। एक्चुअली ये प्रॉपर लिक्विड नहीं है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक या विस्कस। बाद में फाइंड आउट किया गया था प्लास्टिक या विस्कस, आप इजी टर्म्स में समझ लीजिए, ऐसा लिक्विड जो बहुत ही गाढ़ा हो, लाइक इसे लावा नहीं निकल के आता है, वो एज ए प्योर लिक्विड बिहेव नहीं करता, सेमी सॉलिड सा और सेमी लिक्विड सा, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर बनते हैं कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शन आपने अगर दो वर्ड होते हैं, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस? कंडक्शन के अंदर तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, केवल एनर्जी मूव करती है। लाइक आपकी वायर्स होती है ना, वायर से करंट जाता है, या वायर का आप एक किनारा गर्म कर दो लोहे की रोड, दूसरा अपने आप गर्म हो जाता है, उसमें कुछ चल के नहीं आया ना। पर कन्वेक्शन का मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं। आपने गैस के ऊपर रखा पानी उबालने के लिए, गैस कहां से जल रही है? नीचे से। तो पानी ये वाला पहले गर्म होता है और इसके पार्टिकल चल के ऊपर तक आते हैं, आपको बोलते हुए दिख भी जाएगा पानी। सो ये इसको बोलते हैं, फिर जो अगल बगल से ठंडा पानी चला जाता है, दिस इज द कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन सेल। आई बात समझ में? सो उसने कहा कि ऐसे ही क्या है, मेंटल के अंदर भाई साहब कन्वेक्शन सेल बनते हैं, कहीं पे तो लावा राइज करता है और कहीं पे जाके सिंक कर जाता है। आई बात समझ में? कहीं पे राइज करता है, कहीं पे ये सिंक कर जाता है। उसने इनको नाम दिया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी या कन्वेक्शनल सेल थ्योरी।
आर्थर होम्स ने। अब इससे ये पूछा गया कि भाई साहब ये यहीं पे क्यों राइज कर रहा है, कहीं और राइज क्यों नहीं कर लेता, दिक्कत क्या है? तो ये बोला कि अर्थ के अंदर यानी मेंटल के अंदर एट सम प्लेसेस देयर इज रेडियोजेनिक हीटिंग। व्हाट इज रेडियोजेनिक हीटिंग? देयर आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और वो इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है सब जगह पे, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे तो मोर हीट होगी ना। अब ज्यादा हीट होने से ये मटेरियल क्या हुआ, पिघलना शुरू हुआ, पिघलने से क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का हुआ। अब हल्का मटेरियल हमेशा ऊपर की साइड आएगा। इसने अपनी हीट कुछ ट्रांसफर कर दी टू द क्रस्ट स्लोली स्लोली, यहां जाके जब ठंडा हो गया अगल बगल वाले के मुकाबले, इट विल सिंक अगेन। So this was the theory proposed by, or this was the improvement made by, basically improvement कह सकते हो, to explain the continental drift theory। कि भाई सब कुछ उसका सही था, केवल वो रीजन ही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों ऐसे मूव करते हैं। तो आर्थर होम्स ने अपना ये पॉइंट दिया। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी के अंदर, आई थिंक 2018 और समटाइम 19। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल प्लूम्स, 10 मार्कर। सिंपल था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो उसके अंदर आपको आर्थर होम्स का नाम लिखते बहुत बढ़िया था। इट इज पार्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी गिवन बाय आर्थर होम्स टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और उसके बाद आपको मेंटल प्लूम का जिक्र करना था, जहां से लावा राइज करता है इट इज हॉट प्लूम, और जहां पे लावा सिंक करता है इट इज कोल्ड प्लूम। ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा, आगे भी अगर जब आप पढ़ेंगे उसके लिए ओशियन करंट्स वगैरह, तो ज्योग्राफी में जहां भी रेडिश रंग होता है वो डिनोट करता है हॉट टेम्परेचर्स को, और जहां पे भी ब्लू होता है इट डिनोट्स द कोल्ड टेम्परेचर्स। तो आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी क्या कहते हैं एटलस वगैरह, तो जहां पे हर एक एटलस में आपको कोल्ड करंट जो है ब्लू कलर से ही दिखाया होगा उसने, और जो वार्म करंट हमेशा वो रेड कलर से ही दिखाया होगा। सो दीज आर द हॉट प्लूम्स जो कि ऊपर की साइड आ रही है, कोल्ड प्लूम्स नीचे की साइड जा रही है। सो ये था उसका आंसर। ओके, अभी के लिए अगला आया मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर में क्या निकल के सामने आया? एक सेकेंड। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर में कुछ चीजें सामने आने लगी, जैसे के लिए ये हुआ था, एक सेकेंड, इट हैपेंड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग ओशियन मैपिंग करने नहीं गए थे, पर प्रॉब्लम क्या थी, हिटलर ने स्पेशली बहुत सारी सबमरीन्स बनवाई थी, ठीक है। एंड दीज सबमरीन्स, इन सबमरीन के चलते लड़ाई में तो जो हुआ वो हुआ, उसके बाद इनका कुछ फायदा हुआ, और फायदा ये हुआ, हम जो थे पहली बार ओशियन फ्लोर जो था उसका आइडिया लगा सके थे। इससे पहले हम लोग क्या सोचते थे कि ओशियन में कहीं कोई द्वीप है तो है, वरना यहां से कॉन्टिनेंट है, उधर ये एकदम परफेक्टली स्मूथ ओशियन है। उसके बाद पता चला भाई साहब रिज भी है बीच बीच में, कहां लफड़े में हो, कहीं पे अंडर सी वोल्केनो है, कहीं पे माउंट है, कहीं पे गायट है, और कहीं पे ट्रेंचेस हैं। सो इट वाज डिस्कवर्ड कि स्मूथ तो नहीं है, इसमें कुछ तो चल रहा है, ठीक है ना। सो इसने हमें एक नया वो दिया, क्या कि जैसा कि वो मानता था, एल्फ्रेड वेजनर का ये मानना था कि नीचे में चाहे यहां पे वो मेंटल मानता था, इसके ऊपर वो सीमा वाली परत मानता था, और इसके ऊपर जहां सियाल वाली परत आ गई उसको वो मानता था कि इट इज कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए, ये आपका बीच में ओशियन रह गया, उसका तो ये मानना था। तो अगर यही खिसक रहा होता तो फिर ये तो समतल होना चाहिए था ना, यहाँ क्या दिक्कत वोल्केनो की और रिज बन जाने की और ट्रेंच बन जाने की क्या समस्या चली आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था गिवन बाय एल्फ्रेड वेजनर, ये भी रॉन्ग प्रूव हो गया कि नहीं भाई, ओशियन का जो फ्लोर है इट इज नॉट स्मूथ, इट इज फुल ऑफ फीचर्स, और ज्योग्राफी में जिसको बोलते हैं प्रॉपरली लैंड फॉर्म्स, सी माउंट, गायट, वोल्केनोज, ट्रेंचेस,
मिड ओशियानिक रिज, ये सब वहां पे मिलता है, तो ये स्मूथ तो नहीं है। तो इट मींस क्या था कि जो एक्टिविटी है, जैसे मान लो हम कॉन्टिनेंट पे कह देते हैं, कॉन्टिनेंट पे माउंटेन्स बिल्डअप होती हैं, अब माउंटेन्स कैसे बनती है वो भी अभी आगे आएगा, ऐसे ही कुछ कुछ होता है। तो यहां पे जो है ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन जो है इट ऑल्सो कंटिन्यूज एट द ओशियन फ्लोर। और इससे आगे कॉन्सेप्ट निकल के आया, अभी वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब स्टडी किया गया तो कुछ चीजें पाई गई, और वो चीजें ये थी, 1 सेकेंड, द कॉन्सेप्ट केम टू बी नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नाम मैंने अगेन लिख दिया है, इफ यू वांट टू रिमेंबर, आपकी चॉइस, वरना कोई जरूरी है नहीं। हैरी हेस नाम था इस बंदे का जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था, ठीक है। उसने क्या कहा था, उसने कुछ चीजें फाइंड आउट की और तब उसके बाद उसने इस कंक्लूजन पे पहुंचा। वो उसका जो उसने कहा कि वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, जैसे मिड ओशियनिक रिज, जब वो ओशियन फ्लोर की मैपिंग करने गए, मान लो ये ओशियन था, ओशियन फ्लोर की जब वो लोग मैपिंग करने के लिए गए तो उनको उस टाइम पे झगड़ा किसमें, जर्मनी कहां पे बिजी था, अटलांटिक ओशियन, तो उनको अटलांटिक के अंदर रिज मिल गई बीचों बीच, एंड दैट इज फ्रॉम हियर द नेम केम मिड ओशियनिक रिजेस। वरना कभी कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि ओशियनिक रिजेस आर ऑलवेज फाउंड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत सारी रिज हैं पैसिफिक में और इंडियन ओशियन में जो कि किनारे के आसपास है, बट बिकॉज डिस्कवरी अटलांटिक से हुई थी और अटलांटिक वाली जो रिज है वो एकदम मिडल में है अटलांटिक के, इसलिए वहां से नाम आ गया। तो उसने ये पाया कि इन मिड ओशियनिक रिजेस के अलोंग वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं जिससे बनती है। ये कौन, मतलब इट वाज लाइक ए फैक्ट उनके लिए। दूसरा फैक्ट उनको क्या देखने को मिला कि भाई साहब ये जो मिड ओशियनिक रिज है ना, ये जो मिड ओशियनिक रिज है इस ओशियन के अंदर, यहाँ पे किनारे हैं दोनों साइड, कॉन्टिनेंट, इधर अमेरिका आ गया, मान लो इधर आपका यूरोप और एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया नीचे, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका आ गया, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका। अब ऐसा करते हैं, यहां से रॉक का सैंपल उठा लेते हैं, यहां से 1000 माइल दूर गए, यहाँ पे, यहां से 1000 माइल दूर गए, यहां से रॉक का सैंपल हमने उठा लिया। ये दोनों रॉक के सैंपल सेम एज के निकल के आए। चलो थोड़ा और दूर चलते हैं, यहां से चलते हैं, यहां भी यहां चलते हैं, ये दोनों फिर सेम एज के निकल के आ गए। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो ओशियन का जो फ्लोर है, अभी लास्ट ही पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, ठीक है। और इनकी जो पोलरिटी क्या होती है, पोलरिटी होती है, मैं आपको जैसे समझाऊं, अर्थ के ऊपर अगर आप कोई भी मैग्नेट लें, आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप अर्थ के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक नीडल ले लीजिए, उसको अगर आप फ्री फ्लोटिंग छोड़ देंगे तो वो अलाइन कर जाती है विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जब यहां से लावा निकल के आया होगा तो जो मैग्नेटिक पोलरिटी क्या होती है, ये जो रॉक्स है ना, इनके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स किस फॉर्म में अरेंज्ड हैं, फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब ये सेम निकल के आया, ऐसा कंक्लूजन में आपको लास्ट में बताऊंगा। उनको अगला जो एविडेंस मिला, वो बोले कि यार जितना रिज के पास आते हैं ना, उतनी ही रॉक एकदम यंग है। जितना रॉक से यहां से दूर गए और दूर गए और दूर गए और किनारे पहुंचे, दीज आर द ओल्डेस्ट वंस। रॉक रिज के पास आते गए तो वो रॉक्स जो हैं, दे आर द मोस्ट रिसेंट वंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, भाई साहब ये रॉक बहुत पहले बनी थी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और एट लास्ट यहाँ पे नई रॉक बन रही है जो सबसे लेटेस्ट बन रही है। यही हुआ ना, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कार्बन डेटिंग तब तक काफी डेवलप हो गई थी, तो हैरी हेंस ने ये भी पाया कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, वो चाहे यहाँ का निकाल लूं मैं, चाहे यहाँ का निकाल लूं, चाहे यहाँ का निकाल लूं, इट इज मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, कुछ भी लगा लो आप, उससे बहुत यंग है।
अगर ओशियन का जो क्रस्ट है वो सेम एज का होता जैसा कॉन्टिनेंट्स का होता है, तो वो बोला कि भाई साहब फिर तो है ना, हमें ओशियन के फ्लोर पे तो काफी सेडिमेंट मिलने चाहिए। भाई रिवर सेडिमेंट तो वहां लेके ही जाती है ना, पर हमें कोई सेडिमेंट वहां पे क्यों नहीं मिलता है? क्यों? वो क्योंकि बोला वो यंगर है। तो बोला अगर क्रस्ट यंगर है ओशियन का, ये एक रीजन है कि वहां पे सेडिमेंट भी भाई यंगर है। इट मींस सेडिमेंट कैसे बनता है? पहले वीदरिंग होनी चाहिए ना, कुछ लूज मटेरियल हो, उसको रिवर बहा के ले जाए या कुछ और बहा के ले जाए, तब तो कुछ पॉसिबिलिटी है। अब अगर इस प्रोसेस में लगता है टाइम, अगर टाइम ही कम मिला है तो सेडिमेंट भी कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो और उसके अलावा उसको ट्रेंचेज भी मिली, ट्रेंचेज भी पोस्ट वार स्टडी में पाई गई, ठीक है, जिनके आसपास वोल्केनो थे। तो इससे लास्ट में कंक्लूजन पे क्या पहुंचा गया कि ओशियन के अंदर भाई साहब नया क्रस्ट बनता है और ओशियन स्प्रेड होता रहता है, जैसा कि आपका अटलांटिक ओशियन हो रहा है। ये थी आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि कॉन्टिनेंट स्प्रेड नहीं कर रहे, नया क्रस्ट कहां पे बन रहा है? अंडर द ओशियन बन रहा है, एंड दीज ओशियंस आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो बोला ऐसे तो फिर पूरा कॉन्टिनेंट गायब हो जाएंगे। बोला नहीं होंगे, ओशियन वाला जो क्रस्ट है वो दोबारा कंज्यूम होता दिखाई दिया एट द ट्रेंचेस इन द ओशियन। तो सिंपल सी बात ये थी, द न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड अंडर द ओशियंस। दैट वाज द मेन कंक्लूजन जो इतने एविडेंसेस मिलने के बाद वो पहुंच गया था। बिकॉज वही बात है कि क्या नाम है, अगर न्यू रॉक जो है इसके पास मिल रही हैं, मिड ओशियनिक रीज के पास न्यू रॉक मिल रही हैं, और दूर जाने पर अगर इनकी एज बढ़ती जा रही है, इट मींस यहाँ पे नई रॉक बनने लग रही है भाई, और दूर गई और अधिक, तो मतलब ये इससे पहले बन के आई होगी, बाद में इधर खिसक गई है, ये इधर खिसक गई। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी दौरान इसको एक बात का और पता चला, एंड दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इससे पहले भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता था, पर उसके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो नहीं पता थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने यहां पे इसको प्लस और माइनस से डिनोट किया है अल्टरनेटिवली। तो जब लावा निकल के आता है, जब वो लिक्विड होता है, अब लिक्विड हो या गैसियस फेज में हो, तो वहां पे तो जो पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं ना, उनकी जो पोलरिटी है वो डिसाइड किससे होती है? जो पूरे अर्थ का ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। पर एक बार जब वो सेट हो गए, ठंडे होने के बाद सॉलिडिफाई हो गए, तो हो गए। तो उन्होंने ये पाया कि रॉक्स के अंदर पोलरिटी चेंज हो रही है। इस एज की रॉक्स के अंदर मान लो इधर नॉर्थ इधर साउथ है, दूसरी के अंदर कहीं नॉर्थ कहीं साउथ है, उसके अंदर कहीं और नॉर्थ साउथ है। तो इट मींस क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग। ये सी फ्लोर की जब स्टडी की गई उस दौरान ये पाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ होता क्यों है वो एक अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस किया जाएगा जब आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया जाएगा, कि ये रीजन है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नॉर्मली बनता है। ठीक है, सो वो दो मेन कंक्लूजन पे पहुंचा, क्या? कि नया क्रस्ट बनता है अंडर द oceans and ocean floor keeps on spreading, known as concept of sea floor spreading। और इसी दौरान उनको जो नॉर्मल और रिवर्स पोलरिटी मिली इन द रॉक्स ऑफ ओशियन बॉटम, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन पे पहुंचे वो, कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज होता रहता है, इट फ्लिप्स। ओके, सो ये इसने दो मेन कंक्लूजन पे पहुंचाए। नया क्रस्ट कहां बनता था? रिज पे, और क्रस्ट कंज्यूम कहां होता था? ट्रेंचेज पे। पर अभी भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ट्रेंच क्या है, कैसे बनती है, क्यों कंज्यूम कर जाती है, ये कंज्यूम खुद ही बना और खुद ही कंज्यूम हो गया, ये क्या दिक्कत है भाई? या तो बने नहीं या फिर कंज्यूम ही ना हो। तो ये सब चीजें अभी वो नहीं बता पाया था, ठीक है ना। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसने हेल्प क्या की? इसने हेल्प ये की, इसने प्रूव कर दिया कि कॉन्टिनेंट्स को तो धक्का मार रहा है केवल ओशियन। कॉन्टिनेंट्स आर पुश्ड और पुल्ड बाय ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंट्स खुद भी कुछ नहीं करना चाह रहे,
ये यहीं पे कुछ, अब मान लो अटलांटिक बीच से फटना शुरू हुआ तो अफ्रीका और यूरोप इधर रह गए, इधर नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ अमेरिका रह गए। तो इसने धक्का मारा भाई दोनों को, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे ही पैसिफिक खुद श्रिंक हो रहा है, तो अभी नॉर्थ और साउथ अमेरिका पास आ रहे हैं किसके, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। इधर में ट्रेंचेज हैं, इधर में आपकी मिड अटलांटिक रिज थी, ठीक है। तो ये इतना बता दिया कि भाई कॉन्टिनेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो क्रस्ट का बनना और जो कॉन्टिनेंट्स का खिसकना है वो कॉन्टिनेंट से खुद के कारण ना हो के उसको क्या पता लगा कि इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ट्रेंचेज पे यही सी फ्लोर उल्टा श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब कंज्यूम हो जाता है, गायब हो जाता है वापिस मेंटल के अंदर जाके। ओके, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग।